Hello students, how are you doing? A very warm welcome on Supercrats YouTube channel. So we are here with an update from IIM Indore directly today that they brought some changes in the IPM selection process. We are going to discuss one by one in this video. So starting with the eligibility criteria और eligibility criteria में सबसे पहले एज की बात करते हैं. तो IPM इंदौर में 2021 में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो you should be born on or after 1st of August 2001. एक और इंपॉर्टेंट चीज IIM इंदौर ने अपनी वेबसाइट में मेंशन कर दी कि स्टूडेंट्स शुड बी अपीयरिंग फॉर द 12th बोर्ड दिस ईयर और दे शुड हैव ऑलरेडी पास्ड इट in year 2019 and 2020. It's clearly mentioned on the website. तो अगर 2018 में अगर आप अपीयर किए हुए हैं तो this time no chances for sitting for this particular examination. Important is that they've given 5-year relaxation on the age to SC, ST and PWD category students. So if SC, ST or PWD category students are born on or after 1st of August 1996, they can definitely fill the form for IPM in the 2021 applications. Minimum percentage criteria, this time they have not put any minimum percentage for 12th standard. 12th स्टैंडर्ड आपको पास होना जरूरी है या कोई इक्विवेलेंट एग्जाम अगर आपने लिखा है तो अगर वो आपने पास किया है तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं आईपीएम इंदौर का एग्जाम इस साल. पर 10th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए. अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया इज 55% फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. Further, they clearly mentioned that the aggregate marks will be considered for this particular session. Students of IB board or IGSC board or international boards can also definitely apply for this particular program. Talking about the last date is 5th of May for applications for the IPM program, IIM Indore 2021. Application fee for this particular year is going to be 4,130 rupees for the general category of students and 2,065 rupees for reserved category of students, that is SC, ST and PWD category. So now let's talk about the conduct and the paper pattern of IPM 2021, which they have mentioned on their website. The surprise is that they've not given the exact number of questions, but the sectional timing is clearly mentioned and the allocation of marks is also mentioned, like it's going to be +4 for the correct question and -1 for the incorrect answering by the students. So the first section is going to be quantitative ability or quantitative aptitude, and it's going to comprise of 40 minutes of time, and it will be a multiple choice question. Second section में quantitative ability या aptitude short answers रहेंगे, जिसको भी 40 minutes का time दिया जाएगा. Verbal ability MCQ 40 minutes of time. So more or less they are following the trend. जिस टाइप का पेपर पहले से आते थे सालों से, वही इस बार होने वाला है आईपीएम इंदौर में इस साल भी. डेट यू आर नोइंग ऑलरेडी 14th of June. टाइम आ गया है. सरप्राइजिंगली इट्स इवनिंग टाइम दिस टाइम. इस बार जो पेपर होगा वो 4:30 से 6:30 के बीच में होगा. तो इवनिंग में स्टूडेंट्स पेपर लिखने वाले हैं. इस बार शायद पहली बार कोई ऐसा एग्जाम होने वाला है जो इवनिंग स्लॉट में होगा. सो कंसंट्रेशन लेवल्स उस टाइम पे आप लोग अपने चेक कर लीजिएगा पहले से ही कि कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं. Important, it's going to be conducted in 34 cities in India. IPM इंदौर 2021 में आपकी मार्किंग कैसे कैलकुलेट होगी क्लियरली मेंशन कर रहा है IIM इंदौर. इस बार थोड़ा सा अलग चल रहा है IIM इंदौर और कैसे कैलकुलेट कर रहा है हम आपको समझाने वाले हैं via this particular slide. So score of one particular section will be considered individually first and sectional cutoff will be looked into. How it is going to be calculated? Let's understand that. For example, if you wish to look into score of quantitative ability multiple choice question section, then you need to understand that it's going to be 25 into candidate score minus minimum score divided by maximum score minus minimum score. अब कैंडिडेट स्कोर तो वही है जो कि उसने पर्टिकुलर सेक्शन में स्कोर किया. मैक्सिमम स्कोर एक एलिजिबिलिटी पूल बनाया जाएगा जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. उसमें उस पर्टिकुलर सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर जिस स्टूडेंट का होगा वो है. मिनिमम स्कोर उस स्टूडेंट का उसी एलिजिबिलिटी पूल में उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो भी रहेगा वो यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा. सेम गोस फॉर स्कोर इन क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर सेक्शन एज वेल. स्कोर इन वर्बल एबिलिटी में बस इतना चेंज हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन 50 से होगा इंस्टेड ऑफ 25.
बाकी स्कोरिंग क्राइटेरिया जो मैंने आपको समझाई वो सेम रहेगी। इसी के बेसिस पे टोटल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट कहा जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम आपको इजीली समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो वी हैव मेंशन्ड इट ऑन दी स्लाइड एज वेल। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पिछली वाली स्लाइड में एलिजिबिलिटी पूल का मतलब नहीं समझ में आया हो। तो एलिजिबिलिटी पूल में वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हर सेक्शन में लेके आए हैं और पॉजिटिव रॉ स्कोर है, टोटल जो उनका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर है वो पॉजिटिव रॉ स्कोर है, उनको बुलाया जाएगा अंडर एलिजिबिलिटी पूल फॉर द प्रोसेस ऑफ पर्सनल असेसमेंट। अब पर्सनल असेसमेंट में क्या होने वाला है? पर्सनल असेसमेंट में इस साल IIM इंदौर या तो वीडियो बेस्ड असेसमेंट लेगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू, और इसके बारे में कमिटी डिसीजन होने के बाद बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है IIM इंदौर की वेबसाइट पे। सुपरक्रैट्स यूट्यूब चैनल ने पिछले साल भी कहा था कि वीडियो बेस्ड असेसमेंट कंटिन्यू हो सकता है, एंड टिल नाउ IIM इंदौर इज कंसीडरिंग इट एज एन ऑप्शन। So we have put very good videos in a Super Decider series on both personal interview as well as video based assessment. Check out on those videos right now after watching this video. So all the students who are into eligibility pool will be called for the personal assessment this time, and after that what's going to happen we are going to discuss in the next slide. बहुत important slide, किस तरीके से आपका टोटल स्कोर और कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा वो स्लाइड में मेंशन्ड है। एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर को 65% मार्क्स मिल रहे हैं, पर्सनल असेसमेंट को 35%। अभी भी जाग जाइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, पर्सनल असेसमेंट के लिए अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने एक्कोलेट्स के ऊपर, डेफिनेटली अपने सर्टिफिकेशंस के ऊपर काम नहीं करते हैं। हम सुपरग्रेड्स में हर स्टूडेंट को बोलते हैं सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं अगर एप्टीट्यूड टेस्ट कोर्स को 65% मार्क्स दिया जा रहा है और पर्सनल असेसमेंट को 35% मार्क्स दिया जा रहा है, तो दैट डज मैटर, इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल दिस टाइम in selection of students in IPM Indore. So this was it from our side in this particular video. We'll be back with one more video on Supergrads YouTube channel. Subscribe Supergrads YouTube channel, press the bell icon to get regular updates on all the exams after 12th. Thank you.